Now, the next method, how exactly classification will take place. The next method, how classification can be taken place for enzymes, will be based on their structure. कि उनका structure कैसा है. So when we classify, classification of enzymes based on structure. जब स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे बेटा, ये दो टाइप के होते हैं. Either you could have something called a simple enzyme which is not mentioned in NCERT, or you can have something called as compound or complex structure. ठीक है. Now what are simple enzymes? ये ऐसे enzymes है which are composed of amino acids only. देखो, we know that all enzymes are protein. कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीन के अलावा और भी केमिकल चाहिए फॉर देयर फंक्शनिंग. सो ऐसे एंजाइम्स जिनको प्रोटीन के अलावा और भी केमिकल्स चाहिए फॉर देयर फंक्शनिंग और फॉर देयर एक्टिविटी विल बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड एंजाइम्स. बट ऐसे एंजाइम्स जिनको सिर्फ प्रोटीन चाहिए एंड दे आर एक्टिवेटेड, ठीक है, सो प्रोटीन इज फॉर्म्ड ऑफ अमीनो एसिड्स. So when an enzyme is composed of only amino acids, you classify them to be as simple. So compound क्या हो जाएगा? You have amino acids से बना हुआ proteins plus one more compound which is a non-protein compound. Now question is why do you require this another compound, sir? देखो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे because NCERT में नहीं दिया इसके बारे में, but इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. अब suppose हम केमिकल रिएक्शंस लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं. सपोज अगर ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, और ये उसका सबस्ट्रेट है. Do you think this enzyme will bind to the substrate? No. Why? Because they are not complementary to each other, right? Yes. They're absolutely not complementary to each other. So what do is we add another chemical like this. Up my enzyme can bind to it? Yes. Because they become complementary. If I remove this compound, will my enzyme get activated? No. My enzyme gets activated only when you have addition of this compound. Yes. So ये जो red दिख रहा है ना यहाँ पे अपने को, this is the protein part of compound which is called as apoenzyme. क्या म्हणतात बेटा? Apoenzyme. This blue part that we see for the enzyme is called as cofactor. We call it as Cofactor. which together becomes something called as holoenzyme. It becomes holoenzyme. So holoenzyme is nothing but apoenzyme plus cofactor. बराबर बेटा? Yes. Where apoenzyme is the active enzyme, apoenzyme is inactive and protein part of the enzyme. बराबर? Whereas cofactor what we see becomes non-protein part. मतलब ये कभी प्रोटीन नहीं होगा बेटा. कोफैक्टर्स कभी भी प्रोटीन नहीं होते, वो नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं. यानी प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा केमिकल हो सकता है बट प्रोटीन नहीं होगा. ठीक है. अब इस हिसाब से तो फिर क्या होते हैं कोफैक्टर्स? व्हाट आर कोफैक्टर्स? सो व्हेन यू टॉक अबाउट कोफैक्टर्स दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Either they can be organic compounds or they can be inorganic compounds. What do we understand by organic compounds? जो हाइड्रोकार्बन से बना हो. Organic compounds will be those जो हाइड्रोकार्बन से बना होगा. करेक्ट. सो ऑर्गेनिक में हमारे पास दो एग्जांपल्स है बेटा. एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज कोएंजाइम. जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं दे आर नोन टू बाइंड एंजाइम टाइटली. ये एंजाइम को काफी टाइटली बाइंड करते हैं. ठीक है. मतलब ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या तो वो इनऑर्गेनिक हो सकता है. ऑर्गेनिक अगर हुआ तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक या कोएंजाइम.
प्रोस्थेटिक वो होते हैं जो एंजाइम्स को टाइटली बाइंड करके रखता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये ऐसे एंजाइम के साथ जुड़ता है जो एंजाइम कंटिन्यूअसली बॉडी में काम कर रहे हैं। अगर वो एंजाइम्स हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं तो बार बार चिपकना निकलना, चिपकना निकलना, चिपकना निकलना क्यों करना? चिपक के बैठो जब तक वो काम कर रहे हैं, काम हो जाएगा तो निकल जाने का। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? So that's why they bind to the enzyme very tightly. Example for this is attachment of heme group to catalase and oxidase enzyme. We have heard about catalase and oxidase enzyme when we spoke about microbodies in cell, the unit of life. The new batch do not know it. We'll do that in a while. But for older batch, we have done this. Do we remember microbodies? Yes or no? Yes. When we spoke about peroxisomes, glyoxysomes, and spirosomes, right? So, जो peroxisome, glyoxysomes, spirosomes थे, उसमें से when we talk about peroxisomes, they were the one which had these two enzymes. इन एंजाइम्स को अगर एक्टिवेट करना रहेगा तो हीम ग्रुप लगना जरूरी है, बिकॉज ये एंजाइम्स कंटिन्यूअसली काम करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, बट हमें एनसीईआरटी में ये एक ही दिया है तो हम वो एक ही पढ़ेंगे, ठीक है? ज्यादा अक्ल को हम नहीं वापरेंगे, जितना दिया है उतना पढ़ेंगे हमसे, ठीक है? जब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले का, व्हिच इज कोएंजाइम, दिस विल बाइंड लूजली टू एंजाइम। Why will it bind loosely to enzyme? अब तुम बताओ, चलो अकल लगाओ, जोर से बोलो। वो कंटिन्यूअसली काम नहीं करते, जब जरूरत होगा सिर्फ तब काम करेंगे, वरना वो काम नहीं करेंगे। जैसे जब मैं शुगर खाऊंगा सिर्फ तब इंसुलिन सिक्रेट होगा ना। However, insulin is not enzyme, but I'm giving you an example. समझ पा रहे? तो जब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फूड पार्टिकल्स अंदर जाएगा सिर्फ तब और उस समय पे वो एंजाइम रिलीज होगा, और उसी समय पे सिर्फ वो एंजाइम काम करने वाला है। जब उसी समय पे सिर्फ वो एंजाइम काम करने वाला है तो हम क्यों उस एंजाइम के कोफैक्टर्स को बार-बार एक्टिवेट करवाएंगे? मतलब वी वुडंट लेट इट गेट स्टक टू द एंजाइम। वो एंजाइम सिर्फ तब एक्टिवेट होना चाहिए जब वो कंपाउंड आ रहा है, और एक्टिवेट करना यानी उसको कोफैक्टर लगाना। तो उसको टाइटली अगर बाइंड हो गया तो एंजाइम तो कंटीन्यूअसली एक्टिव रहेगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। दैट्स व्हाई इस टाइप के एंजाइम्स में कोएंजाइम्स लगेंगे व्हिच विल बाइंड टू द एंजाइम्स लूजली। एग्जांपल, you have something called as NAD. Have you heard? Nicotine, amide, adenine, dinucleotide. बचपन में पढ़े थे हम। You can have NADP, nicotine, amide, adenine, dinucleotide, phosphate. ठीक है? कहा गया है कि ये जो केमिकल्स का बात हम कर रहे हैं ना, ये केमिकल्स एक स्पेसिफिक विटामिन से बना है, which is विटामिन नियासिन। This is a type of vitamin. So question frame हो सकता है हमको कि कौन सा ऐसा कोफैक्टर है जो विटामिन से बन सकता है? It is coenzyme. Coenzyme में अगर specifically NAD या NADP दिया है तो that becomes your example. Are we clear? चले आगे. When we talk about inorganic, there are multiple inorganic chemicals, like you might have something called as zinc. जिंक काफी सारे केमिकल्स को एक्टिवेट करता है। इनऑर्गेनिक से बेसिकली हमारा मतलब होता है मेटल आयंस। Lots of metal ions are involved in activating enzymes. The first one that we are talking about is zinc, which activates alcohol dehydrogenase. It can activate an enzyme like carboxy peptidase, etc. You can have something called as magnesium, which can activate hexokinase, pyruvate kinase, etc. You can have molybdenum, which activates nitrogenase.
एंजाइम। जैसे काफी सारे अलग अलग एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक मैंगनीज आल्सो, लाइक कैल्शियम आल्सो, which are responsible for activating enzymes by being their cofactors. Are we clear up till here? Everyone? Any doubts? पक्का सब कुछ क्लियर है? ठीक है, अब जब हम एंजाइम्स का बात कर रहे हैं, हमने कहा कि उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर पा रहे हैं, all of this. Question is, who discovered enzyme? इतना सब किसने डिस्कवर किया? शुरू कहां से हुआ ये सारी चीजें? नहीं, वो डीएनए के लिए है। किसने ये पूरा डिस्कवर किया? ठीक है, तो अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं अपने को, बट एंजाइम वाज वेरी फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट। व्हाट नेम आई हैव गिवन? Sumner was the first one given, ना? Actually, it is William Kuhne, but then William Kuhne has been removed from our syllabus. So, सबसे पहले there was a scientist called as J.B. Sumner. समर नहीं रे, Sumner है. J.B. Sumner was the first scientist to isolate enzyme from its original sources. मतलब जेबी समनर ने एंजाइम डिस्कवर नहीं किया था, एंजाइम डिस्कवरी वाज डन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज बुशनर। बुशनर तो ऐसे जाना चाहिए ना सर। शिवलरी सुना, शिवलरी ना, हम कहाँ? सो लिसन, Buchner was the scientist who very firstly discovered enzyme. कैसे किया उसने सर? वो बेसिकली गन्ने का जूस पी रहा था। गन्ने का जूस पीते पीते उसने एक साइड में रख दिया, कुछ दिनों के बाद उसने पी के हो गया तो रख दिया साइड में, उनके उधर काम वाली नहीं आई होगी। Whatever the scene is, he found out that that particular sugarcane juice got converted into alcohol. तो पहले तो देखियो खुश हो गया, वाह दारू। फिर वो सोचने लगा कि बना कैसे, हाउ डिड दिस हैपन। अब ही वांटेड टू डिस्कवर एज टू हाउ डिड दिस हैपन। डिस्कवर मतलब ही वांटेड टू आइडेंटिफाई कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था ना, तब उसने देखा कि उस पर्टिकुलर शुगरकेन जूस में ईस्ट सेल्स थे। वी नो व्हाट आर ईस्ट, YEAST। तो उसने देखा ईस्ट सेल्स थे। फिर थोड़ा और स्टडी करने के बाद उसको पता चला कि ईस्ट सेल्स के अंदर कोई एंजाइम्स, मतलब अंदर कुछ केमिकल बने, which led to conversion of sucrose into alcohol. ठीक है, अब ये जो केमिकल था that was inside yeast, yes or no? Yes. Greek में inside is called as N, yeast is called as zyma. So the term came up to be as enzyme. So he said chemicals produced in yeast is enzymes. तो इस वक्त हम सारे केमिकल्स को एंजाइम्स ही कहते हैं, जो इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। आर वी क्लियर? अब ना जेबी समनर को जानना था कि ये जो एंजाइम्स है वो सेल्स के अंदर ही सिर्फ काम करते हैं या सेल्स के बाहर भी काम कर पाएंगे। बिकॉज अगर सेल्स के अंदर ही काम करते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ अलग तरीका सोचना होगा उनको स्टडी करने का। लेकिन अगर सेल्स के बाहर निकलवा के भी उसको काम करवा सकते हैं ना, तो बेस्ट होगा स्टडी के लिए भी, और काफी सारी चीजें हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने जैक बीन एक्सट्रैक्ट लिया। जैक बीन एक्सट्रैक्ट, पता है क्या होता है ये? अरे पता है तुमको, राजमा चावल सुने हो? राजमा। जैक बीन एक्सट्रैक्ट का जब हम बात करें, उन्होंने क्या किया, इन जैक बीन्स को लिया, स्मैश किया, स्मैश करके अंदर से जो केमिकल्स आते हैं उनको आइसोलेट किया, एंड ही आइसोलेटेड एन एंजाइम व्हिच इज यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो यूरिया को डिग्रेड करता है। ठीक है, इट्स एन एंजाइम दैट डिग्रेड्स और ब्रेक्स डाउन यूरिया। सो यूरिएज एंजाइम is responsible for breaking down of urea, and this was extracted by J.B. Sumner, and he found out कि ये सेल के बाहर निकला ना तो भी काम कर पा रहा है। और इस डिस्कवरी की वजह से आज हमारे आसपास बहुत सारे अलग-अलग डिस्कवरीज हो चुके हैं, या आर्टिफिशियली हम केमिकल रिएक्शंस भी मैकेनाइज कर पा रहे हैं। यानी अगर किसी के बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहे हैं
तो हम आर्टिफिशियली भी उनके बॉडी को डाइजेस्ट करवा सकते हैं। कैसे क्या? विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक डिस्कवरी where we understood that enzymes are functional even outside the cells and not just inside the cells. Are we clear? Everyone? Any doubts? लिखिए फटाफट। Sure. There are different factors that affect enzyme activity. So there are four important factors affecting the enzyme activity, which we need to understand one by one. The first factor that affects enzyme activity becomes temperature. Now, when we talk about temperature, हर एक एंजाइम अलग अलग टेम्परेचर पे एक्टिवेट होता है। अगर हमें उसी चीज को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना होगा, and if this is the graph where x axis has an information regarding temperature and if y axis has the information regarding rate of reaction, then in that case जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, वैसे वैसे एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वी विल गेट मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी मिलेगा। उस टेम्परेचर के बाद अगर तुम और या उस पॉइंट के बाद अगर तुम और एंजाइम का और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एंजाइम एक्टिविटी विल ग्रेजुअली डिक्रीज। This is how the enzyme tends to get affected with the temperature as a factor. This specific point at which the enzyme activity is maximum is called as temperature optima. यानी अगर मुझे X एंजाइम को, ठीक है, लेट्स से ये अमाइलेज का ग्राफ है, तो अगर मुझे अमाइलेज एंजाइम को बेस्ट एक्टिविटी पे काम करवाना है, या इफ आई वांट बेस्ट एक्टिविटी टू बी डन फॉर अमाइलेज, आई नीड टू मेक श्योर दैट इट शुड बी अवेल्ड विद स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी कि मुझे ये ध्यान रखना होगा कि अमाइलेज को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिले कंसिस्टेंटली। अगर हम उसको कंसिस्टेंटली वो स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एंजाइम का एक्टिविटी बेस्ट बन के मिलेगा अपने को। अब वो टेम्परेचर ज्यादातर, ये जो टेम्परेचर है ना, ज्यादातर ये टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पीछे दिख रहा है जो लिखा है वो नहीं, यानी छोटा या कलर नहीं दिख रहा है? 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करूं, ठीक है, तो एंजाइम जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, जिस वजह से यू कॉल दिस टू बी एज डीनेचुरेशन पॉइंट। क्या कहेंगे बेटा? डीनेचुरेशन पॉइंट। समझ पा रहे हम? अगर मैं टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से कम कर दूं तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया, और इतने कम टेम्परेचर पे एंजाइम जो होता है उसके बॉन्ड्स, एंजाइम के बॉन्ड्स जो होते हैं वो मूव नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से यू कॉल इट टू बी एज इनएक्टिवेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? समझ पा रहे हम? यस और नो? वंस मोर और अंडरस्टूड? वैसे ही सेम टू सेम when we talk about another factor that is affecting enzyme activity, which is pH. So same part, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें एक जगह पे है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरे जगह पे है pH। pH हमको पता है 0 से 14 होगा बेटा। हर एक एंजाइम अलग अलग pH पे काम करता है, तो डिपेंडिंग ऑन वो एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच क्या है, उस ग्राफ का पीक अपने को वैसा मिलेगा। तो अगर सपोज हम बात कर रहे हैं अगेन लेट्स से पेप्सिन का, वी नो व्हाट इज पेप्सिन? यस। व्हाट? कहां पे सीक्रेट होगा? राइट?
Yes, and if I talk about amylase, salivary amylase, हाँ मतलब अपने सलाइवा से रिलीज होगा। सलाइवरी अमाइलेज का अगर मैं वापस से एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे जैसे हम पीएच चेंज करते जाएंगे उसका एक्टिविटी बढ़ते जाएगा। एट सर्टेन पीएच उसका एक्टिविटी मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद अगर तुम पीएच इंक्रीज करते हो तो वो फट से उसका एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है। सो दिस पीएच विल बी कॉल्ड एज pH optimum. Since we are discussing about amylase, last bench पे कलर दिख रहा है? Since we are talking about amylase, it acts its best at pH 6.8. When we talk about pepsin, it acts its best at pH 1.8. When we talk about trypsin, जो pancreas से secrete होता है intestine में, it functions its best at pH 7.8. Are we clear? Yes. So depending on which enzyme we are talking about, the graph can shift towards right or shift towards left. Are we clear? Yes. Everyone? If you notice it correctly, इसका जो ग्राफ है वो कम स्लोपी था, इसका ग्राफ बहुत ही ज्यादा है, स्टीप है, सीधा ऑलमोस्ट। ऐसा क्यों सर? टेम्परेचर में अगर सपोज वो एंजाइम 25 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट एक्टिविटी देता है, अगर मैं 23, 20 या 18 कर दूं ना तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बेटा, एक्टिविटी ऑलमोस्ट मेरे को सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई एंजाइम 4.5 पीएच पे बेस्ट काम करता है और गलती से मेरा पीएच 4.1 या 4.7 हो गया ना, तो वो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अमीनो एसिड्स जिस तरीके से फोल्ड करने चाहिए ना वैसे फोल्ड नहीं होते, जिस वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है वो सीधा। सो कहने का मतलब ये है कि पीएच में जरा सा भी चेंज होता है ना तो एक्टिविटी में बहुत डिफरेंस दिखता है। टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा एक्टिविटी डिफरेंस नहीं देता, जिस वजह से टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है दैट इज मोर स्लोपी, व्हेरेज पीएच का ग्राफ इज मोर स्टीपर। स्टीपर समझता है? सीधा ऑलमोस्ट। क्लियर है? यस और नो? यस। ओके, the next factor that affects enzyme activity is substrate concentration. हाँ बेटा, कौन सा वाला? अब ठीक तो क्या रे संकेत भाई? Okay, so the next enzyme that we have, next factor that we have, as we said, is the substrate concentration. अब इसमें क्या होता है? अब ध्यान से सुना, क्योंकि इनमें से किसी का भी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दिया नहीं है, उन्होंने खाली ग्राफ देके छोड़ दिया है। ग्राफ दिया है, लेबलिंग किया और छोड़ दिया है। हम उन लेबलिंग को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं यहाँ पे। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? इफ दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम S को ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट में डालते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। Whereas y-axis will have a rate of reaction. Can I write velocity as word for rate of reaction? It remains same. The rate of reaction is speed basically, which is nothing but velocity. I know that physics में थोड़ा change होता है, but pretty much same. वो भाग के कहीं जाता नहीं ना, इसलिए speed नहीं होगा, velocity हो जाएगा वो। ठीक है? ठीक है। चले आगे। क्या होता है? देखो, सुनो, अंडरस्टैंड। मैंने एक जेरोक्स का दुकान डाला, ठीक है? अब मेरे पास 5 ऑपरेटर थे, लेट्स से चलो 10 ऑपरेटर थे मेरे पास, ठीक है? तेरा कमेंट देख के हो गया मिस्टर गायकवाड़? हो गया? अब हम बात करें, सपोज जेरोक्स मशीन डाला हमने, ठीक है? और 10 काउंटर्स है उस पे, और मैंने ये डाला है एग्जैक्ट वालचंद कॉलेज के बाहर। और ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट से तुमको जेरोक्स का बार-बार जरूरत पड़ता है, मुझे पता मेरा धंधा चलेगा ही। अब सीन क्या हुआ, नया नया डाला ना, तो पहले एक बंदा आया, फिर 2 बंदा आया, फिर 3 आए। अब 1 2 3 तक तो मैं फटाफट काम करके उसको दे देगा ना, 10 काउंटर है।
फटाफट दे दूंगा। फिर 10 बंदे आए तो भी मैंने फटाफट दे दिया, 20 आए तो भी मैंने फटाफट दे दिया, अब 100 आए, 200 आए। अब सीन क्या हो रहा है, जब 200 स्टूडेंट्स एक साथ आ रहे हैं ना जेरोक्स के लिए, ये 10 के 10 फुल स्पीड में काम कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे जो वेटिंग में खड़े हो गए बोलेंगे यार कितना स्लो काम कर रहा है करके, कब से मैं इधर आके खड़ा है, काम ही नहीं खत्म हो रहा है इसका ना। आइडियली दोस ऑपरेटर्स आर वर्किंग एट देयर मैक्सिमम स्पीड ना, बट देन प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज्यादा आ गए, तो उसमें ऑपरेटर का क्या गलती, ऑपरेटर तो सीधे। सेम चीज एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ होता है। हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हर एक एंजाइम के पास बहुत सारे एक्टिव साइट्स होते हैं, जिस वजह से सबस्ट्रेट हमेशा ज्यादा यूज करते हैं और एंजाइम हमेशा कम होता है। ठीक है, अब सीन क्या होता है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट डालते जाएंगे ना, एंजाइम खुशी खुशी फटाफट काम करेगा, बट एक पॉइंट के बाद एंजाइम के जितने भी एक्टिव साइट्स थे ना, सारे के सारे सैचुरेट हो गए, यानी कि सारे एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट जाके बैठे हैं, तो दूसरे सबस्ट्रेट वेट कर रहे हैं कि कब वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन के निकलेगा और कब मैं भी जाऊंगा प्रोडक्ट बनने के लिए। सेम चीज जैसे जेरोक्स मशीन का हुआ, पीछे लोग खड़े हैं कि कब वो आगे वाला बंदा जाएगा और मैं जाके जेरोक्स के लिए दूंगा मेरा पेपर्स। समझ पा रहे हैं? Same logic is happening over here. So at some point, even if I'm increasing my substrate concentration, enzyme का velocity will not increase because it has reached its maximum velocity. Decrease नहीं होगा, फिर वो stagnant रहेगा अभी, बराबर? ऑपरेटर थोड़ी बोलेगा कि 200 लोग आए थे अभी मैं काम नहीं करेगा। ऑपरेटर क्या बोलेगा, करता हूँ मैं, जितना स्पीड में हो रहा उतना कर रहा हूँ मैं, बट अभी मेरे हाथ में नहीं है ना, मशीन के हाथ में। So machine is working at its maximum speed. इससे ज्यादा स्पीड में काम नहीं कर सकता वो। समझ पा रहे हैं? वो 200 के 400 भी हो गए तो भी उतना ही टाइम लगेगा। अब हमें क्या लगेगा इसके अंदर, पहली बात ये जो मैक्सिमम स्पीड पे काम किया, मतलब इट हैज रीच्ड एट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच इज Vmax. Yes or no? Yes. Now what happens is, do I want my enzymes to function at maximum speed or maximum velocity? My answer is no. Why don't I want my enzymes to function at its maximum velocity? Chalo, I'll give you a good example for that. For boys, I'll give another example which they can understand. For girls, I'll give different example which they can understand correctly. Okay? Now, if girls can understand this, best है. ठीक है? जो boys को मैं example दे रहा हूँ फिलहाल, कि अगर तुमको बाइक लेके दिया, ठीक है, और तुमको बोला कि बाइक का जो मैक्सिमम स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर है, और मैं बोल रहा हूँ रास्ते एकदम मस्त स्मूथ है और पूरे खाली है, तुमको रोज उससे जाना है वही रोड से. If I ask you all to go on that road at 250 speed, maximum speed, always, rows, will you all go on that speed? Why? एक तो पहले of course accident, ठीक है, चलो imagine करो कि तो नहीं accident होगा, फिर हम रोज जाएंगे? नहीं, technically हम नहीं जाएंगे. Why? Because that machine will not function correctly. उसका लाइफ कम हो जाता है. क्यों ऐसा होता है कि वो मीटर होता है ना, स्पीडोमीटर, उस पे you have those green light, yellow light and red light, which say that हो सके उतना red light पे कम चलाओ. ठीक है? Likewise, if I give an example to girls, even boys can answer if they are ever visiting kitchen or know these basics. हंसते क्या चोमू? ना, जब तुम किचन में जाते हो और मिक्सचर ग्राइंडर पे काम कर रहे हो, अगर तुम गए हम काम करने को, और मिक्सचर ग्राइंडर पे तुम काम कर रहे हो, it has 3 levels, first level, second level, third level, right? जब कभी भी तुम first, second तक काम करो तब तक मम्मी कुछ नहीं बोलती, थर्ड लेवल पर आती मम्मी एकदम से चिल्लाती है कि नीचे कर, इतना ज्यादा तुम स्पीड पे काम नहीं कर सकते, मिक्सचर खराब हो जाएगा. अगर 3 पे रखने पे मिक्सचर खराब होता तो मशीन वाला 3 दे ही क्यों रहा है? So basically कहने का मतलब ये है कि दो हमको मैक्सिमम स्पीड दिया है, वो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए दिया है कि इमरजेंसी कंडीशन में तुम मैक्सिमम स्पीड पे काम करो, बट नॉर्मल कंडीशंस में तुम मैक्सिमम स्पीड पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज वो मशीन का लाइफ कम हो जाता है, एफिशिएंसी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है. जो मशीन या जो इंजन तुम्हारा 10 साल तक चल सकता था, प्रोबेबली वो 7 या 6 साल तक ही चलेगा, बिकॉज तुम उसको कंटिन्यूअसली 280 के स्पीड पे या 225 के स्पीड पे चला रहे हो. सो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हो रहा है. जब हम एंजाइम्स का बात करें ना बेटा,
we don't want enzymes to function at its maximum speed because that will reduce its efficiency. उसका efficiency कम हो जाएगा. समझ पा रहे हैं हम? तो हम क्या करें सर? तो हम उसको ना हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे काम करवाएंगे. अब ये हो गया मेरा हाफ Vmax. Yes or no? Yes. Which I can also write it as Vmax by 2. बात तो सेम ही हुआ ना. So this becomes my half maximum velocity. ठीक है? अब मेरे को मैत्रेय पूछता है कि सर हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे तो मैं काम करवा लूंगा, लेकिन उतना ये मैत्रेय so इंटरेस्टेड किसका एग्जांपल लिया. अब जब हम हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी का काम करें बेटा, मैत्रेय पूछते हैं कि कैसे काम कर. मुझे समझ गया, चलो आपने बोला मैं काम करवा रहा हूँ एंजाइम को उसके आधे स्पीड पर ही, मैक्सिमम का हाफ स्पीड पे काम करवाऊंगा, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कितना सबस्ट्रेट डालूंगा तब जाके वो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा. यस और नो? सो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला हमने एक ग्राफ बना दिया, उसका हाफ मैंने सिलेक्ट कर लिया कितना हो रहा है, और उसको मैं एक्सट्रापोलेट करता हूं वाया एक्स एक्सिस पे. So I get the concentration at which my Vmax will be half. This concentration of substrate is called as Km value. क्या मतलब बेटा? Km value. Where Km stands for Michaelis Menten constant. It stands for Michaelis Menten constant. Are we clear up till here? Yes. Everyone? Yes. Any doubt so far? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्की बात. Km वैल्यू क्या है समझा, Vmax क्या है समझा, हाफ Vmax क्या है समझा. टेस्ट में या एग्जाम में आया तो हम मार्क कर पाएंगे. पक्की बात. Km यानी जब मैं चाहता हूँ कि हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे एंजाइम काम करे तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कितने कॉन्सेंट्रेशन पे वो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा, नहीं तो मैं तो डालते जाऊंगा सबस्ट्रेट. सो इतने पे डाल कितना चाहिए, दैट इज Km चाहिए. सॉर्ट है बेटा? Yes or no? Yes. Are we clear up till here? There is one more factor which affects enzyme activity, but पहले इतना देख लो फिर उस पे चलते हैं. Enzyme inhibitors क्या होते हैं? Which is the fourth factor that affects enzyme activity. इनहिबिटर्स बेसिकली ऐसे केमिकल होते हैं जो एंजाइम को बाइंड करता है और एंजाइम को इनहिबिट करता है. इनहिबिट मतलब स्टॉप कर देना उसके एक्टिविटी को. ठीक है? अब वो एंजाइम के एक्टिविटी को कैसे स्टॉप करता है? तो आइडियली हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, बट एनसीईआरटी में एक ही टाइप बताया है अपने को, तो हम वो एक ही टाइप पढ़ेंगे, व्हिच इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. जब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का बात करते हैं तो ये क्या होंगे? इफ दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द सबस्ट्रेट. ठीक है? तो जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो सबस्ट्रेट से काफी ज्यादा मिलता जुलता दिखता है और केमिकली होता भी है. सो इफ दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस विल बी इनहिबिटर. जो सबस्ट्रेट से काफी ज्यादा सिमिलर है, जिस वजह से एंजाइम गलती से सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर को बाइंड कर लेता है. जब वो गलती से सबस्ट्रेट के जगह पे इनहिबिटर को बाइंड कर लेता है तो वो बाइंड तो कर लेगा, पर अब जो बॉन्ड तोड़ना है ना, वो बॉन्ड इस केमिकल में है ही नहीं. तो एंजाइम को लेके मैं क्या तोड़ूं? अब कुछ तोड़ तो नहीं सकता, इसको छोड़ भी नहीं सकता, एंड दैट्स वेयर एंजाइम गेट्स स्टक. एंजाइम अटक जाता है और उसका काम जो है वो रुक जाएगा, एंड दैट्स हाउ एंजाइम गेट्स इनहिबिटेड. So how do I explain this? The inhibitor competes with substrate for binding at active site. For binding at active site. इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है ताकि वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर सके. ठीक है? जैसे वो बाइंड कर देगा उसको इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है. ठीक है?
अब क्वेश्चन इज क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब क्या हम दुरुस्त कर सकते हैं जो हुआ उसको? आंसर इज यस, इट इज अ reversible action. How? By increasing substrate concentration. अब ये क्या हम कर रहे हैं सुनो। सपोजली फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था केमिस्ट्री का। अब उस केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में उसको मिथेनॉल को एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर करना था। अब एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर करने के लिए पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम होपिंग सबको पिपेट पता है क्या होता है, स्ट्रॉ जैसा एक सब्सटेंस ग्लास से बना हुआ, कांच का बना हुआ। तो वो मिथेनॉल को सक किया, एक लेवल पे लाया, बाजू में जाके छोड़ रहा था। अब उस समय पे मिथेनॉल इज हाईली पॉइजनस टू योर बॉडी, तो वो जब सक कर रहा था ना तो गलती से थोड़े ड्रॉप्स मिथेनॉल के वो उसके मुंह में चले गए और वो गल गया। अब वो मरने वाला चीज कर रहा है कि अब बाजू में खड़े खड़े हम उसके फ्रेंड्स उसको मरने तो देंगे नहीं, तो इजीएस्ट थिंग इज कि उसको उल्टी करवा लो तो सारा चीज बाहर आ गया। बट फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस है ना कि थोड़ा बहुत मिथेनॉल बॉडी में रह जाएगा। अब मिथेनॉल इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो इथेनॉल से उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। सो उसको अगर तुम सपोज मिथेनॉल को 2 बूंद गया ना उसके बॉडी में, तुम अगर 10 बूंद या 1 ml या 5 ml या 10 ml का अगर तुम उसको इथेनॉल पिला दो तो देयर आर चांसेस कि जो मिथेनॉल है वो एंजाइम से निकल के उसमें इथेनॉल लग जाए। सो जो एंजाइम इनहिबिट हुआ था वो रिवर्सिफाई हो जाएगा। चांसेस वी आर सेइंग, होगा ही ऐसा नहीं। चल रहा है? Example that is given in our NCERT states that you have a particular substrate called as succinic acid. ये succinic acid जो होता है वो कन्वर्ट होता है fumaric acid में। चुप रह सकते हैं? Succinic acid जो है वो fumaric acid में कन्वर्ट होता है बेटा, और इस कन्वर्जन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जो होता है डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट में से हाइड्रोजन निकाल दिया, इस वजह से एंजाइम का नाम हो गया डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट में से निकाला इसलिए नाम हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। आर वी क्लियर? यस और नो? Yes. सक्सिनिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाला तो फ्यूमेरिक एसिड बन गया, इसलिए नाम हो गया एंजाइम का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। नाउ कभी कभार क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है सक्सिनिक एसिड का, उसमें सक्सिनिक एसिड की जगह पे एक दूसरा केमिकल भी ऐड हो जाता है व्हिच इज मैलोनेट। तो जब उसमें मैलोनेट ऐड हो जाता है, दोनों ही स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। सो एंजाइम गलती से सक्सिनेट को बाइंड करने की जगह पे किसको बाइंड कर लेता है, जिस वजह से एंजाइम क्या हो जाएगा? इनहिबिट। एंजाइम गेट्स inhibited. Are we clear? Yes. If I want to reverse this reaction, what will I do? Add more substrate. What is the substrate? Succinic acid. तो succinic acid अगर ज़्यादा डाल दिया तो एंजाइम वापस फंक्शनल हो जाता है। आसान बेटा, कोई डाउट्स? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? Everyone? With that we end with your chapter completely. Are we clear? So in tomorrow's lecture we would be discussing MCQs of biomolecules. All right? Yes. Okay. हाँ